Hello and welcome. I am Arun Kumar and this is my ethics class. I am going to discuss one quote that has been asked in civil service examinations 2024, because this is the area where students differ in their interpretation. So one quote I will take and I will discuss that what should be the content of the answer and why. I will give the reason. So before I move here, let's open the questions. I think this first one I have already discussed. Let's discuss the third one. In law, a man is guilty when he violates the right of others. In ethics, he is guilty if he only think of doing so. Immanuel Kant. In Hindi, it is given that कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो दोषी है. नीति शास्त्र के अनुसार यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो दोषी है. इमैनुअल कांट. And I hope that you will not forget this thing. Given below are the quotation of the great thinker. What do each of these quotations means for that convey to you in the present context? So what does it mean? What meaning it convey to you in the present context? This thing you should keep in mind. So as I have said in the beginning, that don't worry about your own answer, own interpretation, because ethics is the paper where your own perspective is required. Okay, and don't try to be objective. You just tell what does it mean, what you think of this thing and why you think of this thing, but in context it will come. So just have a look on that thing. Violate the right of others and all. Then come forward to the note and then I can say, see, in law, when you violate the right of others, then what would happen? Obviously, the system will violate because there is a balance. Society is made with some, some principles that if you all agreed upon principles, where if everyone follows, then system will work. Otherwise, it will collapse. So law works on that thing, that a reality, whether you have violated or not. So this one is actual reality, and if we analyze the both things, law and ethics, so this side will be, I can tell you, the law, and this side is ethics. So if you take the aim, so law is what? Controlling, to control, cure the problem. This is the things. But here is that in ethics, Immanuel Kant says, when you think of violating the right of other, अगर आपके दूसरे के राइट को सोच मतलब कम करने का विचार भी आता है तो ये आप गलत है माने नीति शास्त्र के अनुसार. ऐसा क्यों है? Because it is works on the preventive model. Prevention is the aim. See the difference. Law में your aim is to control, to cure the problem whatever arises, solution, find out the solution. ये है कि प्रॉब्लम ही नहीं उठना चाहिए, ऐसा कुछ करे. समझ गया? I hope you are getting this point. इसका मैकेनिज्म जो है, जो मैकेनिज्म अगर आप देखें, हम इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, तो ये पनिशमेंट पे है ना, फियर ऑफ पनिशमेंट, कौन से फियर ऑफ पनिशमेंट, ये इस तरह की चीजें हैं दैट, एंड दिस इज एक्सटर्नली कंट्रोल. This side, see, in examinations quickly this thing will come in mind. You need not to be very perfect in that. Immanuel Kant, what he is making a point, just you
understand that thing, and in your own word you tell this thing, what you understand out of this thing. But here it is that value based. Value, moral value is this one, and if you think of violating this thing, you will feel guilty. So this will create some sort of guilt in you कि हम गलत कर रहे हैं भाई, दूसरे का राइट है, हम क्यों करेंगे ऐसा, है ना, दूसरे की चीज़ें हम क्यों करेंगे ऐसा. तो यहाँ पे एथिक्स जो है वो प्रिवेंटिव है, और वो क्या करना चाहता है, वो डर के कारण नहीं. वैल्यू का मतलब क्या होता है, आइडियल, मोरलिटी, मोरल जो आइडियल्स है ना, कल्चरल आइडियल्स, वैल्यूज आते हैं. तो ये आइडियल में आत्मसात कर लेते हैं बच्चे से हम लोग कि ये चीज़ें दूसरे का राइट है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा आइडियल बन जाता है. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी मेकअप, साइकी, हमारे माइंड का, हमारे हार्ट एंड माइंड का एक सिस्टम बन जाता है. तो ये वैल्यू जो है वो किससे करते हैं, इंटरनली हमें रेगुलेट करता है. तो हमारे लिए मायने ये है कि ये दोनों चीज़ें लक्ष्य में अगर देखें तो अप्रोच ये है, लेकिन है क्या कि दोनों मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया कि दोनों मिलके हम सिस्टम को चला सके, है ना, पूरी व्यवस्था को चला सके, पूरे सिस्टम जो हम डेवलप किए. तो अगर आप लास्टली अगर हमसे पूछेंगे कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें ये आएगा कि ये दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना. ये जो सिस्टम है, अगर हम इसको इस तरह से करें, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कि एक दूसरे के पूरक है. अगर हम कंप्लीटली सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो केवल हम डर से नहीं चला सकते. अभी देखो, आप बहुत सारे जगहों पर देखो, हमने फाइन कितना बढ़ा दिया रोड पे, क्या रोड एक्सीडेंट स्पीड घट रहा है, उस तरह से पुलिसिंग कितना बढ़ाया हुआ है, क्राइम क्यों बढ़ जाता है फिर. तो ये केवल इससे नहीं, ये इंटरनल रेगुलेटर बहुत ज़रूरी है. इसलिए एथिक्स में लाया गया कि भाई जब तक अंदर से लोग रुकेंगे नहीं, कितनी पुलिस बिठा देंगे आप, सबके घरों में या सबके हर के सुरक्षा के लिए आप पुलिस तो नहीं बिठा सकते. तो कुछ वैसा ही है कि दूसरे का राइट को फोर्सफुली आप कितना इम्प्लीमेंट कराएंगे, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है. तो इन पार्ट की एक बड़ा सेक्शन, अगर आप हमें ये बोले कि ये अगर पूरा ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो ये बड़ा वाला भाग प्रिवेंशन है, और ये जो है क्योर वाला पार्ट है, जो आपने देखा होगा पुलिसिंग वाला, ये लॉ इसको कंट्रोल कर, और ये एथिक्स करता है. ये अगर ये नहीं होना, पूरी सिस्टम बैठ जाएगी. ये चीज़ हमें समझ में आया. इमैनुअल कांट ने जो स्टेटमेंट दिया है, प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में ही समझाया जाता है कि जो ये सोशल सिस्टम है, जो हमारा, जैसे हमारा कंट्री है, तो एक सोशल सिस्टम है पूरा बड़ा, तो इसमें चलाने के लिए दोनों तरह के फोर्सेस की ज़रूरत है. लोग अगर अंदर से अच्छे नहीं हो ना, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आप कितनी डर से आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर सकते इसको. यही हमारा मतलब है. अब अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब कोई कुछ और लिख देगा, कोई कुछ और, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे. मार्क्स मिलेंगे, आप समझ गए कि इसका जो इनहेरेंट जो चीज़ें हैं बेसिकली आप देखिए तो वो क्या है. यही ना कि आप समझते हैं कि पूरी ये जो सोशल सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ओवरऑल सोशल सिस्टम जो कहते हैं, आपको उसके लिए सोशियोलॉजी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंथ्रो पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं. बेसिक आइडिया है ये पूरा जो सिस्टम वो चल रहा है, वो उसमें हम देखते हैं कि बिहेवियरल लेवल पे चीज़ें होती हैं. एंड देन देयर आर टू फोर्सेस दैट हेल्प अस टू रेगुलेट द थिंग्स, एंड दीज आर द थिंग्स. तो अपने तरीके से चाहे जिस भी एग्जाम्पल को देकर आप बताएंगे तो यही ना. अगर ये बताते हैं तो आपका लॉजिकली देखे आंसर जा रहा है उस तरफ से. अदरवाइज आप क्या इंटरप्रेट करते हैं वो तो आप पे निर्भर है ना. इमैनुअल कांट को ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है. राइट एंड रॉन्ग बस इतना ही है कि राइट को रिस्पेक्ट करने की बात है प्रिवेंशन के लेवल पे, एंड और कंट्रोल और क्योर करने की बात है ये. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. ये चीज़ें बिल्कुल आसान है अगर आप सही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेते हैं.
अच्छा, प्रेजेंट कंटेक्स्ट का एग्जांपल आप दे सकते हो, मैंने वही दिया है, आप पुलिसिंग का दे लो, कहीं का दे लो, सिंपल है। तो इसके लिए उस पर जोर नहीं देना चाहिए, इसकी जो स्पिरिट है ना ये इस कोटेशन में, उसको आप एलोबरेट कर दो जो आप समझ रहे हो। डेफिनेटली इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करें किसी और कोटेशन पे। थैंक यू वेरी मच।